Today a new topic, that is torque and angular momentum. So what is torque? When a force is applied on a body and due to the application of force, when the body or the system of particles rotates about an axis, then it is said that the body is in rotational motion. That is, when a force is applied on a body, then it has a tendency to rotate, and the body will rotate with an angular velocity about an axis passing through the its center of mass. Then it is called the torque is applied. That is the product of position vector and the force अप्लाइड. तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल दैट इज अ रिजिड बॉडी. कोई भी रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं और इस रिजिड बॉडी में मान लेते हैं कि दिस इज, ये कहीं पे ओरिजिन हो और यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है. दिस इज द सपोज दिस इज द point and having position vector r, and at this point force is applied. मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. So due to the application of force, this rigid body will rotate. ये रोटेट करेगा about an axis. ये एक्सिस जिसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है. तो इस जो फोर्स का यानी कि यहाँ जो टॉर्क हम फाइंड आउट करेंगे, तो टॉर्क क्या होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. ये क्या फोर्स अप्लाई किया गया है? तो पोजीशन वेक्टर और ये फोर्स, दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड, एंड आर क्रॉस एफ विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. सो द रिजिड बॉडी और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ये रोटेट करेगा. तो यहाँ पे ये जो टॉर्क होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कैसा फोर्स जिसका टेंडेंसी क्या होता है? रोटेट करने को होता है. इसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग कपल भी बोल सकते हैं, यानी कि रोटेशन का टेंडेंसी होता है रोटेट करने का. एंड टॉर्क इज डिनोटेड बाय टाउ एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज given by r cross f. That is, this is the cross product of position vector and the force applied at a point. तो इस पॉइंट पे क्या है? फोर्स अप्लाई किया गया है. तो यहाँ पे इस फोर्स का परपेंडिकुलर, जैसे ये क्या होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये दोनों के बीच में एंगल है. दिस इज द पोजीशन वेक्टर r एंड एंगल बिटवीन position vector and force vector is theta. Then this will be also theta. Then r cos theta this is, and this will be the r sin theta. Or it is written as r f sin theta, or it is written as r sin theta into f. And r sin theta is what? The perpendicular component of position vector, and it is perpendicular to the force applied. This is the application of force, and this is the position vector the component, that is r perpendicular into f, or it is also written as r f sin theta. यानी f का कंपोनेंट ले सकते हैं, that is f perpendicular, ये भी लिख सकते हैं. तो टॉर्क इज व्हाट? तो r क्रॉस यहाँ एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर n ले सकते हैं इसमें, यूनिट वेक्टर n. And the direction of this unit vector is normal to the plane containing r vector and force vector. तो r vector ये हो जाएगा और ये force vector इधर. तो r cross f will give the direction of the torque. किसी भी बॉडी पे टॉर्क लगेगा. इसको मोर जनरलाइज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से. Let's consider the axis. X axis. This is y axis and this is z axis. And let's consider there is a point P having position vector r, and at this point, that is, there is a particle at point P
having position vector r, and at this point a force is applied. This is a force applied, and the direction of force and the position vector is theta. This is a position vector r vector on extending. Then this is the perpendicular, that is component of r, that is r cos theta, and this is r sin theta. तो ये r sin theta आ जाएगा, तो इस तरह भी लिख सकते हैं. दैट मीन्स ये पार्टिकल इस पे फोर्स इधर लग रहा है, जिस कारण से पार्टिकल क्या रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा. ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स द सिस्टम पार्टिकल्स ऑफ द पार्टिकल विल रिवॉल्व और रोटेट अबाउट एन एक्सिस. तो एक्सिस से पास करेंगे और ये इसके एक एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, रोटेट करेंगे. तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन ये आर वेक्टर हो गया, फोर्स वेक्टर हो गया, तो आर क्रॉस है पानी की इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इस तरह दिखा सकते हैं. दिस इज द डायरेक्शन प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा. तो ये क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क. तो यहाँ पे हम लोग आर क्रॉस एफ इस तरह से डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि फोर्स और ये पोजीशन वेक्टर अगर 0 डिग्री दोनों के बीच में एंगल है तो क्या देगा, टॉर्क 0 हो जाएगा. दैट मीन्स कि पोजीशन वेक्टर इधर है और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, देन देयर इज नो रोटेशन. या इसमें यहाँ पे देखें, फोर्स अगर इसी डायरेक्शन में लगेगा तो नो रोटेशन, या एंटी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो भी नो रोटेशन, बिकॉज 180 या 0 डिग्री होगा तो रोटेशन में होगा. लेकिन अदर देन 0-90 के बीच में कुछ भी होगा तो क्या आएगा, देयर इज रोटेशन, तो रोटेशन हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम. तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, ये जो पता ना एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम ही एल से डिनोट करते हैं, और एल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी, यानी पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल का या सिस्टम पार्टिकल्स का, या फिर क्या सकते हैं उसको लीनियर मोमेंटम क्या है. तो कोई भी रिजिड बॉडी है या कोई भी पार्टिकल यहाँ पे इस तरह कंसीडर करते हैं, एक एक्सिस है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन में ये घूम रहा है, और दिस इज द पोजीशन वेक्टर. और ये पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है, दैट मींस कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक तरह का पोजीशन वेक्टर आर हो गया. एक्सटेंड करेंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा लग रहा है. तो ये आर क्रॉस पी जो होगा, दैट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है. तो आर क्रॉस पी विल गिव द एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ पे इस प्लेन में कंसीडर करेंगे, यहाँ पे क्या, दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, इधर वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे इस डायरेक्शन में. तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर क्रॉस ऑफ दैट इज इसका डायरेक्शन, और इस एक्सिस के डायरेक्शन अगर यहाँ कंसीडर करेंगे तो एक्सिस के डायरेक्शन क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन, या नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर पी वेक्टर. तो ये दोनों का क्या हो जाएगा. तो इस तरह का अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसका पोजीशन आर वेक्टर ऐसे भी ले सकते हैं, रेडियस वेक्टर. तो रेडियस वेक्टर इधर आ जाएगा और ये मोमेंटम वेक्टर, लीनियर मोमेंटम वेक्टर ये आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी, देन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ऑफ द अबाउट पी. सो पी साइन थीटा और आर साइन थीटा इंटू पी, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, और इट इज ऑल्सो रिटन एज आर पी परपेंडिकुलर, ये भी लिख सकते हैं. फिर इसी तरह से एंगल 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, डायरेक्शन या टॉर्क का मैग्नीट्यूड अलग अलग आ जाएगा. तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं. अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज फोर्स होता है. तो इसी तरह से न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एल इक्वल टू व्हाट, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी. देखो जिसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो क्या करेंगे, डी एल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, डी आर बाय डी टी क्रॉस पी प्लस
तो ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज r क्रॉस dt by dt सिंस dr by dt इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ v है एंड ये क्या है क्रॉस p हो गया प्लस r क्रॉस your dp by dt, that linear momentum is change, the rate of change of linear moment is what force, and the direction of velocity is along the direction of momentum, दोनों सेम डायरेक्शन में, that is angle between them two is what 0, the cross product is 0. So dr by dt क्या आ जाएगा r cross f, but we know that r cross f is what torque, ये टॉर्क आ गया, दैट इज dl by dt क्या आ गया टॉर्क आ गया, दैट मींस इस किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो भी अगर चेंज इन मोमेंटम हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दैट मींस यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं ये जो टॉर्क होगा ये दो तरह का टॉर्क होगा, एक टाउ जो होगा एक इंटरनल टॉर्क कह सकते हैं प्लस एक्सटर्नल टॉर्क हो जाएगा, यानी इस रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है इसमें जो अलग अलग पार्टिकल्स होगा ये सब पार्टिकल्स का क्या होगा पोजीशन वेक्टर, अलग अलग पोजीशन वेक्टर, जिससे i पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ri हो जाएगा, और इसमें मान लेते फोर्स Fi लग रहा है, तो ri क्रॉस Fi विल बी व्हाट द टॉर्क, तो टॉर्क अलग अलग लगेगा, तो इंटरनल टॉर्क लग रहा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे भी फोर्स लगा रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, और एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या हो जाता है का सम जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, दैट इज 0 हो जाता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये एक्शन रिएक्शन फोर्स, उसके कारण क्या आ जाएगा नेट टॉर्क इंटरनली क्या आ जाएगा वो 0 हो जाएगा, इंटरनल टॉर्क जो हो जाएगा वो क्या जाएगा 0 हो जाएगा, तो ओनली क्या करेगा एक्सटर्नल टॉर्क, दैट मीन्स अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाइड होगा किसी भी बॉडी पे ये ext, अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस, ये एक्सटर्नल फोर्स ही होता है, तो टाउ क्या जाएगा टाउ ext हो जाता है, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट द एक्सटर्नल टॉर्क, तो एक्सटर्नल टॉर्क हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये कंसीडर करते हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम of system of particles, system of particles, तो मान लो कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो उसमें से मान लेते हैं अलग अलग पार्टिकल्स का जो पोजीशन वेक्टर्स है वो r1 r2 r3 है, और उसमें मान लेते हैं इस पार्टिकल्स में फोर्सेस लग रहा है f1 f2 f3 इस तरह का फोर्सेस लग रहा है, तो सारे पार्टिकल्स का इस पार्टिकल्स का कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, और उस एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा पूरे रिजिड बॉडी यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हो जाएगा, तो ये पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अगर एंगुलर मोमेंटम L है तो ये जो L का कंट्रीब्यूशन होगा वो किसके कारण होगा फर्स्ट पार्टिकल के कारण होगा एंगुलर मोमेंटम, सेकंड पार्टिकल के कारण, थर्ड पार्टिकल के कारण L टोटल प्लस Ln यानी n पार्टिकल्स के कारण ये angular momentum, that is angular momentum of system of particles is due to L1, L2, L3 plus Ln, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं L इज इक्वल टू सिग्मा Li लिख सकते हैं, I इक्वल टू व्हाट, तो सिग्मा Li लिख सकते हैं, यानी ith पार्टिकल का समेशन, तो ये समेशन क्या आ जाएगा टोटल मोमेंटम हो जाएगा, दैट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और हम लोग जानते हैं Li जो होता है सिंस Li ith पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या आ जाएगा ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्रॉस ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, यानी कोई एक ith पार्टिकल यहाँ पे है तो इस ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ri हो जाएगा, और इसमें अगर लीनियर मोमेंटम है तो pi हो जाएगा, तो r क्रॉस की क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, और वो पार्टिकल मूव करेगा तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा वो Li हो जाएगा, इसीलिए अगर हम समेशन यूज कर लेते हैं टेकिंग समेशन वर्क है देन इट बिकम्स सिग्मा Li where I equal to 1 to n which is equal to sigma
आर आई क्रॉस पी आई, ये हो जाएगा। तो आर आई क्रॉस पी आई, ये जो समीशन होगा वो क्या आ जाएगा, टॉर्क, ये टॉर्क देगा टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, तो ये अलग अलग पार्टिकल्स का क्या होगा, नेट टॉर्क हो जाएगा। तो ये टॉर्क हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज डी आर बाई डी टी जो आ रहा है, अब इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एल आई, और ये समेशन जो आया क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम एल आ गया। तो यहाँ पे एल जो आ जाएगा एल इक्वल टू व्हाट, एल इक्वल टू समेशन ऑफ आर आई क्रॉस पी आई, ये आ जाएगा। अब डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी जो हो जाएगा क्या आएगा, समेशन, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ समेशन आर आई क्रॉस पी आई, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी के रिस्पेक्ट में। और ये डिफरेंशिएशन जो आएगा इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल टॉर्क यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल टॉर्क आने की एल आई 1 आई 2 आई 3 आने की टोटल टॉर्क यहाँ निकाल सकते हैं, टाउ ई एक्स टी, और ये टाउ ई एक्स टी कितना आ जाएगा, अगर मान लीजिए टॉर्क नेट टॉर्क या एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल था वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम वही रहेगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर यहाँ 0 रह गया, अगर दिस एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, देन ये डी एल बाई डी टी ये जो टर्म जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे क्या पता चला, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन देयर इज नो एनी टॉर्क अप्लाइड ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, देन द एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या करता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। दैट इज इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ नेक्स्ट टॉपिक फिर पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है आई इंटू ओमेगा, यानी कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। तो ये टॉपिक नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि अगर मान लिया जाए कि पोजीशन वेक्टर कुछ दिया गया है, जैसे आई माइनस जे प्लस के दिया है, और फोर्स का वैल्यू अगर दिया है मान लीजिए 3i प्लस 5k माइनस 3 या 2j, सॉरी के और ये क्या आ गया, देन टॉर्क, व्हाट इज द टॉर्क, दैट इज टॉर्क इज व्हाट, आर क्रॉस एफ हो जाता है। तो ये दोनों का हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर, यानी कि आई माइनस जे प्लस के क्रॉस 3i प्लस 5j माइनस 2k, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने बताया था वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरह से हम डिनोट करेंगे, दैट इज आई जे और के, ये ले लेते हैं जिसमें से आई जे के दैट मीन्स कितना 1 माइनस 1 और फिर 1 दे रहा है, एंड यहाँ फोर्स में क्या 3 5 और माइनस 2। तब यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, दैट इज पहला टर्म, जैसे आई, इस टर्म को क्लोज करते हैं, इस टर्म को क्लोज करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 और -2 दैट इज 2 हो जाएगा, फिर -5 -1 दैट इज 5 इंटू 1 दैट इज 5, एक प्लस हो गया, फिर माइनस लेंगे, फिर दूसरा टर्म जे ले लेंगे, तो जे टर्म में क्या ये बंद करेंगे और ये बंद करेंगे, दैट इज 1 -2 दैट इज -2, फिर 3 इंटू 1 दैट इज -3, फिर प्लस जे वाला प्लस माइनस, फिर प्लस ले लेते हैं और के वाला टर्म ले लेते हैं, फिर के वाला टर्म इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 दैट इज 5 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा। इस तरह सब सॉल्व करेंगे तो टॉर्क का वैल्यू में निकल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।